Narayan. In this video, I have taken up a conversation from Mahabharata. This is principally between Vidur and Dhritarashtra, and in their narration, Vidur brings up another conversation between Prahlad and Sudhanvan, and Virochan is the silent listener. So Vidur is reasoning with Dhritarashtra about what not to do, and in his explanation, he brings up this small conversation between Prahlad and Sudhanvan, which happened way earlier than their own life. So there are two conclusions of this summary. There is a wager of life between Virochan and Sudhanvan. They are suing for the same woman called as Kesini. Kesini is a paragon of beauty and she wants to marry to a fitting husband. And then she puts up a question to both of these, that who of you are superior? Virochan claims that I claim my descent from Prajapati, so I am superior. And Sudhanvan says that no, I am the Brahmana and I am superior to you. So they both then wager their own life, and then they both go to Prahlad, and Prahlad is being questioned by Sudhanvan about who is the superior one among these two, and Prahlad says, how can I answer this question in front of you both, because I will actually have end up uh, I will disrespect any one of you according to my conclusion, so I cannot answer this question in front of you. But then Sudhanvan pleads with him that we want to know the answer of this question. And then Prahlad puts up a question that what is, before answering, what you answer my question, that what is that result of a person who speaks a lie when asked a question and does not speak the truth. And then Sudhanvan goes on to explain it to him that someone who is being asked a question, and if they speak a lie for the sake of an animal, for the sake of a cow, for the sake of a horse, they actually ruin many uh, descendants and many of their ancestors, about 100 of their ancestors, and they bring them down to hell. And if someone speaks a lie for the sake of gold, they actually ruin all their ancestors, even their coming descendants. And in the end, someone who makes a lie, who speaks a lie for the sake of land, actually ends up ruining everything. So this is the answer of Sudhanvan to Prahlad, and then Prahlad goes on to answer to Virochan and Sudhanvan, and Virochan is listening, especially he's speaking to Virochan. Prahlad says that, listen, Virochan, Sudhanvan is superior to you. Sudhanvan's father, his ancestor Angiras, is superior to myself. Even Sudhanvan's mother is superior to your mother. So you have lost this wager. Sudhanvan has won this wager. He has become the master of your life. And then he makes a plea to Sudhanvan that since I have only one son, I make a plea that please, release him from the clutch of death. So Sudhanvan is very happy because Prahlad has stood on the path of truth. Prahlad has not swerved from the path of truth because he is one of the favorite devotees of Narayan, of Vishnu. He is such that he cannot speak a lie, and that is the reason that Sudhanvan had himself advised Virochan that let us go to your father. And Virochan was very happy, but Sudhanvan knew that your father, Prahlad, is one of the best devotees of Narayan, so he would never lie. And in the end, Vidur explains it to Dhritarashtra through this narration that look, if someone lies for the sake of land, they will actually end up ruining everything. So this is the message that Vidur gives to Dhritarashtra. And in the end, Sudhanvan actually saves the life of uh, Virochan. He gives a new lease of life, but he asks Prahlad that he will have to come and wash my legs, wash my feet in the front of Kesini, and then he can go anywhere he likes. And then Virochan agrees, and then the conversation ends. So this is the summary of this particular conversation. ये जो इस वीडियो के लिए मैंने एक सुंदर छोटा सा संवाद लिया है, वो विदुर और उनके भाई धृतराष्ट्र के बीच में होता है। विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है, अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका ही अहित होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हित होगा। ये उनको बहुत ही समझा रहे हैं, और वो समझाने के लिए वह बहुत भिन्न भिन्न कथाओं को लेके आते हैं, पूरा पौराणिक कथाओं को लेके आते हैं। उनमें से ये एक छोटा सा संवाद वह उनको समझाते हैं और लेके आते हैं। ये संवाद हुआ है प्रहलाद और सुदनवन के बीच में।
प्रहलाद और सुधन्वा ये दोनों अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, और विरोचन जो है प्रहलाद का पुत्र वो सुन रहा है। तो ये जो दृश्य है वो बहुत पहले हो गया था, मगर उसका जो दृष्टांत है, उसका जो मुख्य सार है, और उसका जो सीख है, उसकी सीख वो ही विदुर ने प्राप्त की थी, और वो विदुर धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। और ऐसा हुआ था कि सुधन्वा और विरोचन ये दोनों में एक दाव लगा था। ये दोनों एक ही स्त्री, केसनी नाम की एक बहुत ही सुंदर रूपवान स्त्री थी। तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री नहीं थी, और उनको एक उचित वर चुनना था, और स्वयं से चुनने वाली थी, इसलिए स्वयंवर उन्होंने रचा था। और उसमें एक दिन पहले विरोचन उनके यहाँ पर जाकर उनको मिलते हैं, और विरोचन है वहां पर सोने की कुर्सी में उनको बैठाया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। और केशिनी उनको पूछती है कि आप श्रेष्ठ हो, आप उत्तम हो, या सुधनवा उत्तम है या श्रेष्ठ है। तो विरोचन तभी उनको कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं अपना, मेरे जो वंशज है वो प्रजापति से ही हम आते हैं, और प्रजापति से थोड़े ही नीचे हम हैं, तो मैं तो सुधन्वा से बहुत अधिक श्रेष्ठ हूँ। तो केसिनी कहती है कि आप यहीं रुकिए, कल प्रातःकाल सुधन्वा भी आने वाले हैं, तो हम उनके सामने फिर से ये चर्चा करेंगे। और दूसरे दिन प्रातःकाल में सुधन्वा आ जाते हैं, और उनका उनका मुख्य सत्कार करती है केसनी, क्योंकि वो ब्राह्मण है। और केसनी उनको पानी देती है, हाथ पैर धोने के लिए भोजन देती है, और उनका एक मुख्य अतिथि आए हैं ऐसा ही उनको सत्कार मिलता है। और विरोचन उनको कहते हैं कि आप यहीं बैठ जाइए मेरे पास, ये कुर्सी पर, सोफा जैसा था बड़ा। तो सुधन्वा कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ में नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे उत्तम हूँ, आपसे श्रेष्ठ हूँ। विरोचन कहते हैं कि नहीं, आप मुझसे उत्तम नहीं है। और फिर सुधन्वा एक घोषणा करते हैं कि एक ही कुर्सी पर कौन कौन बैठ सकता है, ये एक नियम है। पिता और पुत्र जो है वो एक कुर्सी पर ही बैठ सकते हैं। फिर दो ब्राह्मण जो है, अगर एक ही आयु के हो और एक ही ज्ञान का स्तर उनका समान हो, वो एक साथ बैठ सकते हैं एक ही कुर्सी पर, एक ही लेवल पर। दो क्षत्रिय, दो शूद्र और दो वैश्य, ये दो दो का जोड़ा एक साथ बैठ सकता है, मगर मैं और आप एक गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। सुधन्वा का ये कहना था, और उन्होंने ये घोषणा दी, और ये एक आप कह सकते हैं कि ये सूत्र भी है। ये पहले के समय में ये सूत्र थे, और इसका पालन किया जाता था, क्योंकि इसी से ही हमारा, यही, इसको ही सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हम कुर्ता पहने, धोती पहने और साड़ी पहने, और एक दूसरे को कुशल मंगल पूछे, और फिर सनातन हम अपने आप को माने। सनातन ऐसे नहीं होता है। सनातन शास्त्र को मानकर ही सनातन बना जाता है, उसी को सच्चा सनातनी कहा जाता है। तो सुधन्वा ने ये घोषणा कर दी, और फिर विरोचन कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, और सुधन्वा कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। तो विरोचन फिर ताव में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी सेना लगा दूंगा दाव पे, मैं घोड़े, हाथी, रथ, मेरी पूरी सेना, और मैं सब कुछ लगा दूंगा। चलिए, आप भी अपने ओर से इतना ही लगाइए, और हम दाव लगाते हैं, दाव लगाते हैं, और हम ऐसे किसी के पास जाते हैं जिसको इस प्रश्न के उत्तर देने की योग्यता जिसमें हो, और हम दोनों उसको मानते हो। तो सुधन्वा बहुत अधिक क्रोधी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब क्या लगाते हो, ये सब दाव में नहीं लगाया जाता। अगर आपको सही में, आपको सत्य की खोज है, तो मैं अपने प्राण ही दाव पे लगाता हूँ। चलिए, आप में अगर हिम्मत है तो अपने प्राण दाव पे लगाइए। और विरोचन कहता है कि हाँ, मैंने लगा दिए, चलो हम दोनों के प्राण दाव पे लग गया। अगर कोई भी हारा तो उसको मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी। दोनों दोनों ने सहायता, दोनों ने मान गए, सब केसनी के सामने दोनों ने मान लिया। और फिर विरोचन तुरंत ही कहते हैं कि मैं आपको पहले ही कह दूं कि मैं आपके किसी परिवार वाले या आपके कोई देवलोक में देवता के पास मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो आपके ही पक्ष में उत्तर देंगे। मगर सुधन्वा ने जो कहा, वो सुनकर विरोचन स्तब्ध हो गए। उनको आशा नहीं थी कि ऐसा कहेंगे सुधन्वा। सुधन्वा ने कहा कि एक काम करते हैं, किसी देव के पास नहीं जाएंगे, हम जाकर आपके ही पिता प्रहलाद से पूछते हैं,
और विरोचन तो मनोमन बहुत ही प्रसन्न हो गए। अरे वाह, ये तो मेरे पिता के पास ही जाएंगे, तो मेरे पिता तो मेरे ही पक्ष में उत्तर देंगे, मेरे ही पिता है। तो मान जाते हैं और तुरंत ही दोनों प्रहलाद के पास जाते हैं। और प्रहलाद बैठे हैं अपने महल में और इन दोनों को आते हुए देखते हैं और उनको लगता है कि ये दोनों तो वैसे तो शत्रु है, एक ब्राह्मण है और ये एक दैत्य है, ये इन दोनों को मैंने कभी साथ में नहीं देखा है, तो कुछ तो हुआ है। ये दोनों समीप आते हैं और फिर प्रहलाद उनका स्वागत करते हैं। सुधन्वा को कहते हैं कि आइए आइए बैठिए ब्राह्मण देवता, आपके लिए मधुपर्क तैयार है। मधुपर्क यानी शहद मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, मक्खन मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, घी, ये सभी मिला के मधुपर्क तैयार किया जाता है और उनको किसी को कहते हैं कि आपके लिए एक गाय भी, श्रेष्ठ गाय तैयार है। तो ये जो ब्राह्मण आए हैं उनका सत्कार पहले होता था कि एक गाय, एक धोती, ऐसे कुछ वस्त्र, अगर हीरे जवाहरात है या सोने की मुद्रा है उनको तुरंत ही देते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही भूदेव है, भूमि के देव ब्राह्मण को कहा गया है और ये ही शास्त्रों की घोषणा है। तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया ये कि आपको एक गाय हम तुरंत ही भेंट में अभी देते हैं। मगर सुधन्वा ने कहा कि नहीं, मुझे आपका, आपके महल में आते ही किसी ने मेरा सत्कार कर लिया है, तो अब आप सत्कार का रहने दीजिए, आप केवल ये उत्तर दीजिए। तो फिर विरोचन भी बहुत क्रोधी थे उसमें। विरोचन ने तुरंत ही प्रश्न पूछ लिया अपने पिता को कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये जल्दी जल्दी आप उसको इसका उत्तर हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही क्रोधित हूँ और हम दोनों में ऐसा कुछ दाव लगा है, प्राण के ही दाव लगा है। प्रहलाद सुन के फिर सोचते हैं कि मैं ऐसे कैसे उत्तर दूं। सुधन्वा भी फिर पूछते हैं कि नहीं नहीं, हमको ये दोनों का, हमको इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है और हम दोनों ही सहमति से ही आए हैं कि आप जो बोलेंगे वो हम मानने वाले हैं। तो प्रहलाद तो और चिंतित हो जाते हैं कि मैं अभी अगर उत्तर दूं तो कुछ भी हो सकता है और ये इन दोनों ने प्राण के दाव ही लगाए हैं, तो मैं उत्तर ही कैसे दूं। प्रहलाद बहुत ही बचने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि ऐसा उत्तर कैसा हो गया, अगर आप दोनों ऐसा पूछते हैं और आप दोनों के बारे में ही पूछते हैं, आप दोनों मेरे सामने यहीं खड़े हैं, तो अगर मैं उत्तर भी दूंगा तो दोनों में से एक तो हारेगा, तो मेरे मुझसे तो अपमान ही हो जाएगा किसी एक का। तो मैं ऐसे उत्तर कैसे दे सकता हूँ आप दोनों के सामने, मैं बहुत ही चिंतित हूँ। प्रहलाद उत्तर दे ही नहीं रहे हैं और सुधन्वा ने फिर और दो तीन बार कहा, मगर फिर अंत में प्रहलाद फिर सुधन्वा को पूछते हैं कि आप कृपा करके मुझे पहले ये बताइए, मैं आपको उत्तर देने के लिए सज्ज हूँ, मगर आप मेरे प्रश्न का एक उत्तर आप पहले दीजिए कि अगर कोई किसी को प्रश्न पूछता है और अगर वो सामने वाला मनुष्य उत्तर देते समय असत्य बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, तो उसको कैसा पाप लगता है। तो ये उत्तर मांगा है प्रहलाद ने सुधन्वा के पास से। तो सुधन्वा ने तुरंत ही उत्तर दे दिया। सुधन्वा कहते हैं कि जो, अगर किसी को प्रश्न पूछा जाए, अगर वो असत्य बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, तो बहुत पीड़ा भोगता है, उसके शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं और उसको जैसे कोई जुआ खेल रहा है और जुए में बहुत कुछ हार गया है, वैसी अनुभूति होती है। उसके जीवन में बहुत दुविधा आती है, मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाते हैं। फिर उसने मुख्य उत्तर अभी दिया। वो कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य असत्य बोलता है, अगर कोई सामान्य प्राणी के लिए असत्य बोलता है, तो वो उसके ऊपर के 5 पीढ़ी के जो उसके पूर्वज है, वो पूर्वजों को वो नीचे नरक में गिरा देता है, धकेल देता है। अगर कोई मनुष्य गाय के लिए असत्य बोले तो वो उनके ऊपर की 10 पीढ़ी को नरक में गिरा देता है। अगर वो घोड़े के लिए असत्य बोल दे तो वह ऊपर की पीढ़ी के 100 पूर्वज को नरक में गिरा देता है। और अगर वह सुवर्ण के लिए, सोने के लिए, गोल्ड, सोने के लिए अगर वो झूठ बोल दे, असत्य बोल दे, तो वह अपने सभी पूर्वज और सभी आने वाले वंशज का भी विनाश करता है। और इससे आगे और एक है, सुधन्वा कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य भूमि के लिए असत्य बोलता है, भूमि यानी लैंड, जमीन, भूमि के लिए असत्य बोलता है, तो वह सब कुछ नष्ट कर देता है।
सब कुछ माने सब कुछ नष्ट कर देता है। तो ये सुधनवा का उत्तर प्रहलाद को दिया, और प्रहलाद ने फिर तुरंत ही पहले जो सुधनवा और विरोचन ने पूछा था उनका उत्तर तुरंत ही दे दिया। प्रहलाद ने कहा, विरोचन को खास संबोधित करते कहते हुए कहा कि सुनो पुत्र, सुधनवा जो है वह तुमसे अधिक बड़े हैं, श्रेष्ठ है, उत्तम है। सुधनवा के जो पूर्वज, उनके पिता है अंगिरा ऋषि, वो भी मुझसे अधिक श्रेष्ठ है, बड़े है, उत्तम है। सुधनवा की माता जो है वो भी आपकी माता से बड़ी है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो विरोचन, आप ये दाव हार गए हैं और सुधनवा आपके स्वामी बन गए हैं, तो आप ये हार गए हैं। और फिर वह तुरंत ही सुधनवा को कहते हैं कि हे सुधनवा, आप मुझ पर कृपा करें, मेरा एक ही पुत्र है विरोचन, मुझे पता है ये दाव हार गया है, मगर अगर आप कृपा कर सकते हैं तो कृपा कीजिए कि ये बच जाए कैसे भी, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र है। और सुधनवा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो उनको उत्तर देते हैं कि हे प्रहलाद, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आपने सत्य का पक्ष लिया है, आप सत्य के पक्ष में ही खड़े हैं। आपने जो बोलना चाहिए था, जो कहना चाहिए था, वो ही कहा। भले आपका ही अहित होने वाला था, आपको तो ये भी पता था कि आपका पुत्र मरने वाला था, और फिर भी आपने सत्य ही कहा। इसीलिए इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपके पुत्र को जीवन दान देता हूं। मगर इसके पहले इसको एक बार, विरोचन को, केसनी के सामने मेरे पैर धोने होंगे। पैर मेरे धो लेगा केसनी के सामने, और फिर विरोचन कहीं भी जा सकता है। और प्रहलाद और विरोचन दोनों मान लेते हैं और वह स्वीकार भी कर लेते हैं। तो ये जो प्रभाव है वो उसका आपको हमको ये समझना है कि प्रहलाद जो है वह भागवत पुराण में, महाभारत में नारायण के सबसे बड़े भक्त कहे गए हैं। प्रहलाद अभी भी सूतल में जीवित है अपने पौत्र बलि के साथ में, और नारायण साक्षात वहां पर उनकी रक्षा किए हुए हैं, सूतल में अभी भी है। हम जहां बात कर रहे हैं प्रहलाद अभी भी जीवित है, और प्रहलाद कभी जन्म उन्होंने लिया था और अब तक जीवित है, और भी रहने वाले हैं करोड़ों वर्षों तक। तो ये भगवान की कृपा है, और यही हमको देखना है कि अगर हम सत्य बोले तो हमको क्या मिल सकता है भगवान के ही द्वारा। और जब ही हमारे प्राण भी दांव पर हो, हमारे या हमारे किसी परिवार वालों के, अगर हम सत्य बोल दे तो भगवान हमको बचा सकते हैं, बचा ही लेंगे। क्योंकि स्वयं प्रहलाद के भीतर, स्वयं सुधनवा के भीतर ही भगवान का एक अंश है, वह भगवान के ही अंश है। और जो ब्रह्म है वह स्वयं नारायण है। तो जो ब्रह्म प्रहलाद के भीतर है वो भी सदनवा के भीतर है, और ब्रह्म ही हमें चेतना शक्ति द्वारा हमें इशारे करता है, हमें अच्छे अच्छे विचार, हमको प्रेरित करता है अच्छे विचार लाने के लिए। और उसी समय सुधनवा के मन में ही अच्छा विचार आया कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं और मैं विरोचन को जीवन दान देता हूं, और इसने छोड़ दिया। तो ऐसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं अगर हम प्रहलाद के जैसे सत्य ही बोलते रहे। और ब्राह्मण की उसमें विशेषता भी कही गई है, जो पहले के युगों में बहुत ही मुख्य रूप से पालन की जाती थी, और जिसके माध्यम से कभी भी पूरे पूरे विश्व में कभी कोई अकाल नहीं होता था, कभी किसी की मृत्यु नहीं होती थी, कभी किसी को कोई दुख नहीं था, क्योंकि वह ब्राह्मण को बहुत ही पूछते थे। और ब्राह्मण भी ऐसे श्रेष्ठ उत्तम ब्रह्मलीन होते थे, शास्त्रज्ञ थे, वेदज्ञ थे, श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। आज वो भी विलुप्त होते गए हैं, मगर फिर भी जो महिमा है वो कलयुग में भी कही गई है। और ये अंत करते हुए फिर विदुर धृतराष्ट्र को बहुत शांति से समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, सुधनवा ने क्या कहा था कि अगर आप भूमि के लिए असत्य बोलेंगे बड़े भैया, तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। और फिर वो उनको रिपीटेडली कहते हैं, फिर से कहते हैं, 2-3 बार कहते हैं कि आप कृपा करके भूमि के लिए झूठ ना बोलिए। आप या आपका पुत्र भूमि के लिए अगर आप झूठ बोलेंगे, हस्तिनापुर आपको अगर पांडव को नहीं देना है,
इंद्रप्रस्थ भी छीन लेना है। अगर कुछ आप असत्य बोलेंगे तो आपका सब कुछ नष्ट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। और वो तभी नहीं माने, और उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र का सब कुछ नष्ट हो गया। तो यही सीख ये वीडियो में मिलती है, और ये महाभारत से हमें ये सीख, सुंदर सीख मिला है कि हमें असत्य का सहारा नहीं लेना है। कोई भी परिस्थिति हो, सत्य में अगर स्थित रहेंगे तो मदद कहीं से आ ही जाएगी, सहायता भगवान कर ही लेंगे। सामने वाले के हृदय में ही भगवान इतनी प्रेरणा दे देंगे कि सामने वाला ही हमारी सहायता कर लेगा, अगर हम सत्य पे अड़े रहे तो। यही यही अंत करते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो you can subscribe to my channel. You can also, I would like all of you to subscribe to Govardhan Math. Govardhan Math एक चैनल है YouTube पर, उसको आप प्लीज अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज उसमें बहुत सारा ज्ञान आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। शास्त्र से ही सीधा ज्ञान आपके पास आएगा, और उनके मुंह से जो निकलता है वो केवल और केवल शास्त्र, शास्त्र के अलावा और कुछ नहीं। तो स्वयं भगवान ही आपसे बात करते हैं, क्योंकि शास्त्र स्वयं नारायण है। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। शिव शंकर प्रलयंकर।